explain to you the rules, but for the benefit of the judges and also the audience, we are going to conduct the debate the following way. As you see on the days, we have a moderator and a timekeeper. The moderator's job is to conduct the debate. She will invite the speakers for and against, and the timekeeper will keep the time. The rules are as follows. In each team, this ideally should make a team, but because it is an inter-house debate, they will not be forming a team as such, but they will be speaking either for the motion or against the motion. The first speaker for the topic will speak for a maximum of 3 minutes. The first speaker against the motion will also speak for 3 minutes. Now both these speakers, the first speakers, will present their arguments and they will introduce the topic to us. The second, third and fourth persons on either side will speak for a maximum of 4 minutes. There will be a bell given to you at the end of 3 minutes. Speakers 2, 3 and 4, please note that you will be given a bell at the end of 3 minutes. First two speakers, there will be a bell for Nelson and Aman. There will be a bell at the end of 2.5 minutes, okay? Then you can continue for half a minute. Once the fourth speaker on against the topic finishes his speech, Aman will again come and sum up for 1 minute. He will be given 1 more minute. And finally, Nelson for the topic will conclude the debate by speaking for 1 more minute. I hope this is very clear to you. Right? You will speak for 3 minutes, Nelson in the beginning, and Aman also for 3 minutes. Then again you will get 1 minute each. You will address your opponents only as my worthy opponents. You will not address anybody by name. Nobody will be addressing anybody as by name, and you will address them respectfully. Juniors, we are making a small concession to you so that you don't go blank on the stage. You can carry your paper with you, speech with you, but if you read out your speech, 5 marks will be cut. Judges, please note, in case they read their speech, they are allowed to read, only juniors, not the seniors, but 5 marks will be cut because for preparation, there are 6 marks given, out of which they will lose 5 marks. So students, if you want to be comfortable, if you go blank, you can go down immediately now and get your speech, and you can read or follow it. Judges accordingly, if they follow the speech, please cut the marks. If they read it out, cut 5 marks. Otherwise, if they follow the notes, you can. They're allowed to take a piece of paper that is given to them. That is the only paper they will carry. They can make notes there. They can write points. It's all right. It's allowed. No mark shall be cut for that. At the end of the debate, you will hand over your sheets to me. Personally, you come down to me and hand over to me because they're signed by me. They need to come back to me. So this is the way the debate is going to be. At the end of the debate, the motion will be put to vote to the audience, and the audience will vote accordingly, and accordingly you can decide the motion has been defeated or not. Over to you, Juno. Can you start the debate? हिंदी वाद विवाद के लिए स्वागत करती हूँ। मैं पहली नीलगिरी सदन से नेल्सन जॉन पैट्रिक को बात करने के लिए बुलाती हूँ। नमस्कार, मैं नेल्सन कक्षा 8 का छात्र और नीलगिरी का सदस्य आपके सामने छात्र के साल दोहराने के उचित पर अपने विचारों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर किसी छात्र को कम अंक आते हैं तो फिर उसको अपनी कक्षा फिर से दोहराना पड़ता है। ये सही है क्योंकि वो छात्र की पढ़ाई कायम रहती है और भविष्य में उसको कभी भी मुश्किल नहीं होती और उसकी पढ़ाई में कभी भी रुकावट नहीं आती है। सही तरह अगर किसी अध्यापक ने उस छात्र को सही तरह से समझाया है तो फिर वो छात्र सही तरह से समझकर अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है और उसमें इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि वो अपने परीक्षा में ज़रूर सफल हो जाता है। अगर आप समझ लीजिए
किसी छात्र को आ ई जैसे अक्षर नहीं आते हैं तो फिर वो बड़े अक्षर कैसे लिखेगा। वैसे ही अगर एक छात्र अपने पहले कक्षा में सफल नहीं हो जाता, वो अपनी दूसरी कक्षा में कैसे जा सकता है। छात्र को अपने भविष्य को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आप ही बताइए कि छात्रों को जब कम अंक मिलता है तो उन्हें फिर से वो कक्षा दोहराना चाहिए या नहीं। मुझे तो लगता है हाँ, दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं अगर वो कक्षा बिना दोहराए दूसरी कक्षा में चले गए तो फिर उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने अपने पहले कक्षा में की है। धन्यवाद। Debate once the speaker has spoken. Announce the time taken because there is marks given for time used. He's taken 2 minutes and 15 seconds. धन्यवाद नेल्सन। अब मैं अमन चौरसिया को छात्र का साल दोहराना अनुचित है के ऊपर बात करने को बुलाती हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज यहाँ अरावली सदन की तरफ से आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है छात्र का साल दोहराना उचित या अनुचित। तो आज मैं आपके सामने अपने राय प्रकट करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से तो छात्र का साल दोहराना अनुचित है। साल दोहराने के कई गलत परिणाम हो सकते हैं। साल दोहराने से बच्चा हीन भावना का शिकार हो सकता है। वो अपने दोस्तों में शर्मिंदा भी हो सकता है। इसी वजह से उसका मनोबल कम हो जाएगा, जिससे उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस वजह से छात्र पर अच्छा असर पड़ने के बजाय बुरा असर भी पड़ सकता है। ऐसे बच्चों को साल दोहराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें आसान तरीके और प्यार से पढ़ाएं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और वो ज़्यादा मन लगा कर पढ़े। अगर यह सब करने से भी कुछ ना हो तो उन्हें स्पेशल स्कूल में भी डाला जा सकता है। और अगर छात्र का साल बार बार दोहराया गया तो उसकी ज़िंदगी देरी से भी शुरू हो सकती है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कक्षा दोहराना उचित पे अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई भी छात्र अपनी इच्छा से कक्षा दोहराना नहीं चाहता। यह उसके लिए बिल्कुल सरल नहीं होता, जबकि उसको पिछली कक्षा के छात्रों के साथ पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे योग्य विरोधी, आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए? वैसे ही शिक्षा की नींव का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कमज़ोर रह गई तो ये बाद में बहुत नुकसानदायक होगी। और आपने विंस्टन चर्चिल के बारे में तो सुना ही होगा। यह दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने भी एक कक्षा दोहराई थी। अब आप ही सोचिए, ब्रिटेन जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री ने भी एक कक्षा दोहराई थी। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बस एक साल के त्याग से बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। एक छात्र के साल दोहराने से शिक्षक और अन्य छात्रों को भी फायदा होता है। जैसे एक छात्र कक्षा में बहुत सवाल पूछ रहा है और शिक्षक पूरे समय उसके सवालों का उत्तर देने में ही व्यर्थ कर देगा, तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या और शिक्षक पढ़ाएगा कब? और अन्य छात्र जिनको पढ़ने में मन लगता है वह भी अपनी रुचि खोने लगेंगे। हाँ, सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि हमारे जीवन का एक एक पल बहुत कीमती है, लेकिन यह कहावत भी उतनी ही सत्य है
कि देर आए दुरुस्त आए। इसी से मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आप ही बताइए, क्या छात्र को अपना साल दोहराना चाहिए? नहीं, मैं यह नहीं सोचता। मैं यह सोचता ही नहीं। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे को अपना साल नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि जब वह अपना साल दोहराता है तो उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। वह सोचता है कि पढ़ाई उसके लिए बनी ही नहीं है, और हमें बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई हक नहीं। उसके बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती कोई काम लादना, कुछ काम को लादना उसको बढ़ने से रोकना है, बच्चे को बढ़ने से रोकना है। अगर वह 1 minute 5 seconds. मैं समझती हूँ कि छात्र का साल दोहराना उचित है। छोटी कक्षा में ही छात्रों के जीवन की नींव रखी जा सकती है। हर बच्चे मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होते हैं। अगर बचपन में ही उनकी बुनियाद सही नहीं रखी गई हो तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ऐसा हर बच्चों का मानसिक स्तर अलग होता है। कुछ बच्चों का शारीरिक विकास के साथ सही मानसिक विकास नहीं होता है। ऐसे बच्चों में मैं समझती हूँ कि साल दोहराना उचित है, और ऐसे बच्चों में मैं ये भी समझती हूँ कि उनको अभ्यास की पूर्ण जरूरत होती है ताकि उनकी समझ पक्की हो सके। या फिर जो बच्चे कक्षा में लंबे समय तक किसी बीमारी या वजह से अनुपस्थित रहते हैं, उनके लिए तो साल दोहराना फायदेमंद समझा जा सकता है। मेरे ख्याल से साल दोहराना उचित ही होगा, क्योंकि उनको अपनी पढ़ाई में सुधार लाने का और एक मौका मिलेगा, और ऐसे करने पर उनको अपनी गलती का एहसास होगा। साथ ही साथ उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते, आज वो अपने दोस्तों के साथ उनकी अगली कक्षा में पढ़ते। दोस्तों, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर नहीं तो अभी सोचिए और अपने दोस्तों को इस विषय पर जागरूक कीजिए। चाहे वो आपको बुराई क्यों ना समझे, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मैं दोबारा से कहती हूँ, साल दोहराना उचित है। अगर साल दोहराना चाहते हो तो एक बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि छात्र को किसी दूसरे स्कूल में साल दोहराने के लिए उसी कक्षा में डाल सकते हैं, ताकि वह इन भावना का शिकार न बने और उनका मनोबल बना रहे। मैं इसके साथ अपने विचार को विराम देती हूँ। धन्यवाद। साल दोहराना अनुचित है, पर अपने थोड़े विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, क्या मुझे कोई बता सकता है छात्र दोहराने का अर्थ? कोई? चलो मैं ही बता देता हूँ। साल दोहराने का अर्थ है कि छात्र अगर एक कक्षा में फेल हो जाता है तो उसे दूसरी कक्षा में ना जाकर वही कक्षा को दोबारा करना, परंतु यह अनुचित है। ऐसा करने से छात्र के मन में कई विचार उत्पन्न होते हैं। वह तरह तरह की बातें सोचता है, जिससे उसके भविष्य पर असर पड़ सकता है। अगर स्कूल को पता चले कि छात्र पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उन्हें उस छात्र के माता पिता से इस विषय में बात करनी चाहिए और सही हल निकालना चाहिए। अगर छात्र अपने दोस्तों को अगली कक्षा में देखता है तो उसके मन में हीन भाव की भावनाएं पैदा होती है। कई दोस्त तो कुछ ऐसा कह देते हैं जो छात्र को बहुत बुरा लगता है। अगर छात्र के माता पिता को स्कूल से यह पता चले कि छात्र ये कार्य में अच्छा नहीं है, तो उन्हें छात्र की सहायता करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहिए। आप ही सोचिए, अगर आप फेल हो जाते तो आपको कैसा लगता, क्या करते? मेरे हिसाब से तो आपको बहुत बुरा लगता। आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, आप बस बहुत उदास बैठते रहते। जैसे कि मेरे विपक्षी साथी ने कहा, दूसरे बच्चे जो अच्छा पढ़ते हैं वो कक्षा में अपना समय व्यर्थ करते हैं। मेरे हिसाब से नहीं। अगर अध्यापक को कक्षा में पढ़ाना है
तो वे जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते उन्हें दूसरी कक्षाओं में से रोककर और उन्हें अलग से पढ़ाना चाहिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी समय व्यर्थ नहीं होता। और जैसे मेरे एक विरोधी साथी ने कहा कि बच्चा अगर कक्षा को वापस करता है तो वह उस विषय में और अच्छे से समझ सकता है, वह अच्छे अंक ला सकता है। परंतु जब वह छात्र फेल हो जाता है, उसका मन कैसे करेगा पढ़ने के लिए? वह बस यही सोचते रहेगा, मैं क्या करूँगा, अभी मेरे से नहीं होगा। बस छात्र जब फेल हो जाते हैं वे कोई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमारी भारतीय शिक्षा सरकार ने यह नियम बनाया कि किसी भी छात्र को फेल ना करें। मेरा छात्रों से निवेदन है कि वे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और जिससे उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी ना हो सके। धन्यवाद।